Hello my dear students, welcome to Bifocal Electronics lecture. Today we will be studying first chapter from Electronics paper 1. Name of chapter is Instruments. The measurement of any physical quantity plays very important role in science and technology. Dear students, the measuring, testing and waveform displaying instruments have got very much importance in electronics. This chapter instruments is devoted to such three measuring important instruments. One is CRO, second is function generator and third is digital multimeter. So in this lecture we are going to study in detail about cathode ray tube. The content of the chapter are given here. So in detail we have to study about cathode ray tube, which is also called as CRT, electrostatic focusing, deflection systems in CRT, screens for CRTs, cathode ray oscilloscope, which is very important topic as per the point of view of your board examination, function generator and digital multimeter, which is also called as DMM. Here picture of cathode ray tube is shown. Cathode ray tube ये बहुत ही important part है cathode ray oscilloscope का. यहाँ पे pins are shown. AC supply is given to these pins when this cathode ray tube is connected in the circuitry. ये जो यहाँ पे दिखाया है दिस इज द बेस ऑफ CRT. उसके बाद जो पूरी असेंबली है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं दैट इज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस ग्लास एनवेलप, और ये पूरा इवैक्यूएटेड होता है और यहाँ पे सील किया जाता है. तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज नेक ऑफ CRT. देन दिस फनेल शेप is called as screen of CRT. So CRT is basically display screen which produces images in the form of video signal. It is type of vacuum tube which displays images when the electron beam through electron guns strikes on the phosphorescent surface. In short, CRT generates the beam, accelerates it at high velocity and deflects it for creating images on the fluorescent screen so that the beam become visible to us. यहाँ पे 4th पॉइंट में CRTs में भी ये पूरे 3 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं. सो 4th पॉइंट इज CRTs में भी इलेक्ट्रोस्टैटिकली और इलेक्ट्रिकली फोकस्ड और डिफ्लेक्टेड. तो यहाँ पे आगे जाके हम जो कैथोड रे ट्यूब की इंटरनल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वहां पे वी हैव अज्यूम्ड द डिफ्लेक्शन प्लेट्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिकली फोकस्ड. तो इसका मीनिंग क्या है इसके बारे में डिटेल में और नेक्स्ट टॉपिक है. तो सिर्फ यहाँ पे ये कंसेप्ट समझने के लिए आपको बता रही हूँ कि इसका मीनिंग क्या है. CRTs में भी इलेक्ट्रोस्टैटिकली फोकस्ड मींस जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती है वो डिफ्लेक्शन प्लेट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. तो इलेक्ट्रॉन बीम जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होता है तो दैट इलेक्ट्रॉन बीम एंटरिंग थ्रू दिस डिफ्लेक्टिंग प्लेट will accelerate only in one direction and hence electrons will not move in other direction. तो ये है मीनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली फोकस्ड और डिफ्लेक्टेड प्लेट्स का. अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ CRT. तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली डिफ्लेक्टेड CRTs बेसिकली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन असेंबली. यानी CRT के 4 इंपॉर्टेंट कौन से पार्ट्स है. तो पहला है इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, दूसरा है डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली, तीसरा है फ्लूरोसेंट स्क्रीन एंड 4th पार्ट इज ग्लास एनवेलप एंड बेस ऑफ द ट्यूब. तो ये 4 पार्ट्स
में डिटेल में हमको पढ़ना है, तो फॉर दैट in this diagram internal structure of CRT is shown. Here electron, first part is electron gun assembly. It consists of filament, then cathode, control grid and 3 set of accelerating anode. फिलामेंट जो है, ये फिलामेंट को AC सप्लाई देने के बाद फिलामेंट आइदर टंगस्टन या नाइक्रोम की होती है, तो this filament gets heated after giving AC supply. ये जो कैथोड है, this cathode is surrounding this filament. That's why the heat of this filament is indirectly transferred to this cathode and this cathode gets heated. अब ये कैथोड कॉपर मटेरियल का होता है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जाइज्ड होते हैं ड्यू टू द एक्स्ट्रा हीट गिवन बाय द फिलामेंट, और वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं. तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है. तो ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के बीम को चैनलाइज करने के लिए यहाँ पे ये कैथोड is surrounded by this control grid. कंट्रोल ग्रिड सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, जिसके सेंटर में स्मॉल होल होता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से एमिट हुए हैं, ये कंट्रोल ग्रिड से निकलते हुए बाहर आते हैं. तो यहाँ से निकलने के बाद में दे हैव टू गो थ्रू दिस 3 एक्सेलरेटिंग एनोड. तो यहाँ पे ये ब्लू, ग्रीन और येलो, ये तीनों क्या है, एक्सेलरेटिंग एनोड्स है. दिस इज प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, दिस इज फोकसिंग एनोड एंड दिस इज एक्सेलरेटिंग एनोड. ये एनोड, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से निकल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम को हाई वेलोसिटी और फोकस करने का काम करता है. तो ये फोकसिंग एनोड का काम है टू फोकस दिस इलेक्ट्रॉन बीम, और ये 2 एक्सेलरेटिंग एनोड से ये बीम पास होने के बाद में इट एक्वायर्स हाई वेलोसिटी एंड इट गेट्स शार्पली फोकस. उसके बाद में सेकेंड पार्ट ऑफ दिस CRT इज डिफ्लेक्शन गन असेंबली. डिफ्लेक्शन गन असेंबली में 2 टाइप की प्लेट्स होती है. एक है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट. यहाँ पे दिख रहा है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट जो है ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है ये वर्टिकली प्लेस्ड है. और अगर ये दोनों भी प्लेट्स यहाँ पे नहीं है, तो डायरेक्टली क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके इट विल हिट द स्क्रीन ओवर हियर. यहाँ पे ये हिट करेगा ये CRT के स्क्रीन को. अब as soon as this beam will gets heated at this screen, so there are chances of bouncing of these electrons in these directions. तो ये इलेक्ट्रॉन बीम बाउंस होके सब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्कैटर्ड हो जाएंगे और जमा हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, देयर में बी formation of the electron cloud inside this CRT tube. इसलिए ये जो इंटरनल पार्ट है CRT का, ये फनेल शेप जो ग्लास सरफेस है, ये इंटरनली एक्वेस ग्रेफाइट सॉल्यूशन, जिसे एक्वेडैक कोटिंग कहते हैं, उससे ये पूरा कोटेड होता है. तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स बाउंस हो गए यहाँ पे, तो दोज ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी absorbed by this aqueduct coating. और ये aqueduct coating जो है, इसका फोकसिंग एनोड के साथ एक्सटर्नल कनेक्शन होता है एंड इट सप्लाइज स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज टू दिस aqueduct coating. यहाँ पे ये जो एनोड्स है, ये सभी एनोड्स आर गिवन हाई पॉजिटिव पोटेंशियल. तो ये aqueduct coating से ये फोकसिंग एनोड की तरफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स विल अगेन बी ट्रांसफर्ड टू द कैथोड. अब यहाँ पे ये जो बीम स्ट्राइक होगा, तो ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन फॉस्फोरेसेंस मटेरियल से
कोटेड रहती है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है while selecting this phosphor depends on the given application. तो P1, P2, P4, P11, P31 ये अलग अलग नाम्स है फॉस्फोर के। और ये जो फॉस्फोर्स है ये CRT फॉस्फोर्स करके स्टैंडर्डाइज और डेजिग्नेटेड किए हैं बाय द लेटर P फॉलोड बाय द नंबर। तो P1, P2, P4, P11 तो जो एप्लीकेशन है वो चॉइस से यहाँ पे फॉस्फोर कोटिंग सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में फोर्थ पार्ट जो है, पहला देखा हमने इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, सेकेंड वन इज डिफ्लेक्शन गन, थर्ड इज हियर फ्लोरोसेंट स्क्रीन एंड फोर्थ पार्ट इज पिन्स, कीज, all this and glass envelope, and this is also called as base of the tube. So this is the envelope of CRT. This envelope of CRT is made up of glass and it is highly evacuated. ये glass जो होता है, this glass is very heavy glass and this is used for this phase. The elements of the electron gun assembly are connected to pins on the CRT base and the operating voltage of this CRT varies from 500 to 33,000 volt. So in this way we can study the internal structure of CRT. तो देखा हमने क्या देखा कि देयर आर 4 पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, डिफ्लेक्शन गन असेंबली, फ्लोरोसेंट स्क्रीन एंड बेस एंड ग्लास एनवेलप। इलेक्ट्रॉन गन असेंबली में 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, कैथोड, कंट्रोल ग्रिड, फिलामेंट एंड 3 एक्सेलरेटिंग एनोड्स। फिलामेंट्स हीट होने के बाद में कैथोड हीट होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स चैनलाइज कंट्रोल ग्रिड करेंगे। एक्सेलरेटिंग एनोड्स ये हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे मेंटेन है, उनमें से बीम हाई वेलोसिटी से पास होगा और वो फोकस भी होगा। उसके बाद में ये जो सेकंड पार्ट है डिफ्लेक्शन गन असेंबली, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वहां से वो अगर डिफ्लेक्ट करना है इमेज फॉर्मेशन के लिए तो विल हैव टू चूज दिस, और अगर ये एब्सेंट है तो इट विल स्ट्राइक ऑन दिस फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन फॉस्फोर मटेरियल से कोटेड है, तो जहां पे ये स्ट्राइक होगा वहां पे लाइट डॉट फॉर्म होगा, मतलब इमेज फॉर्मेशन होगा। और ये जो फनेल शेप स्क्रीन है वो इंटरनल साइड से एक्वेडैक्ट कोटिंग से होती है, तो जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स है वो एब्जॉर्ब करके वो फाइनली फिर से कैथोड को ट्रांसफर होते हैं। और ये पूरी असेंबली ये इवैक्यूएटेड ग्लास में कोटेड होके ये बेस पे यहाँ पे कनेक्टेड है, और पिंस सप्लाई देने के लिए यहाँ पे ये पिंस कनेक्टेड होती है। तो दिस इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ CRT। अब ये जो आपको पूरा समझाया ये बताने के लिए यहाँ आपको नोट्स दिए हैं, तो आपको ये वीडियो देख के पॉज करके यू हैव टू राइट ऑल दीज नोट्स एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो जो सब कुछ अभी मैंने बताया है तो ऑल दीज थिंग्स आर रिटन ओवर हियर फॉर योर references. So thank you very much for watching and see you in the next video with the next topic of this chapter.